Respected students, welcome back everyone. Today's video is the most important video on our channel and it will be the bigger video. The reason why I'm telling it will be the bigger video because I have given around hundreds of interview, Power BI SQL interview, whether it is company interview or client interview. And from that, everything what I have learned in those hundreds of interview, that everything I will explain in this video properly end to end. All these points will be discussed properly. Okay, so let's start with the video, but before starting to the video, please subscribe to our channel and press bell icon for all upcoming videos, and follow us on social media, especially Instagram, Telegram. All social media links are in description, and if you like the video at the end, please like and share it. ठीक है. सो अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं. वीडियो विल बी इन बोथ लैंग्वेज, इंग्लिश एंड हिंदी. ओके, तो सबसे पहले बात जो है यहाँ पे, पहला पॉइंट जो है वो है कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन आर की टू सक्सेस ऑफ एनी इंटरव्यू. ठीक है, मैंने यहाँ पे ये चीज बोली है बिकॉज ये पावर बीआई की बात नहीं है, ये बाकी के जो अदर पॉइंट्स है वो पावर बीआई इंटरव्यू के, बट जो फर्स्ट पॉइंट है, आप किसी भी इंटरव्यू दे दो, पावर बीआई का दे दो या फिर अदर डेटा साइंटिस्ट का, डेटा इंजीनियर का, आईटी इंटरव्यू या फिर दूसरा आईएएस आईपीएस का इंटरव्यू, कोई भी आप इंटरव्यू दे दो, सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ना, वो आपके होते हैं सॉफ्ट स्किल्स. उस सॉफ्ट स्किल्स में क्या आता है, प्रेजेंटेशन स्किल, कम्युनिकेशन वगैरह, ये सब चीजें आती है. मतलब कम्युनिकेशन और दूसरा कॉन्फिडेंस, ये आपकी पर्सनैलिटी बताती है. ठीक है, जब प्रोजेक्ट में या फिर कंपनी में ऐसे कुछ सिचुएशन आए, वर्कलोड ज्यादा होता है या फिर आपको बहुत बड़े अथॉरिटी जो होते हैं, एंड बिजनेस एंड यूजर्स होते हैं, उनको कभी कभी प्रेजेंट करना होता है प्रोजेक्ट, तो इस टाइम पे आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत मैटर करता है. हाँ, जिनको 2-3 साल का एक्सपीरियंस है उनको नहीं प्रेजेंट करना होता है, बट ऐसी सिचुएशंस आती है. सो कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन आर की टू सक्सेस ऑफ एनी इंटरव्यू. मेक श्योर अगर आपके पास ये दो चीजें नहीं है तो बिल्ड करना स्टार्ट कर दो. फॉर एग्जाम्पल, इफ योर इंग्लिश कम्युनिकेशन इज वीक, देन व्हाट टू डू. मेनी पीपल से दैट इफ योर इंग्लिश कम्युनिकेशन इज गुड, सॉरी बैड, देन watch English movies or read English newspaper. Mark my words, that will only help you 20 to 30%. If you want to make your English better, best, the only thing you should follow, what I think is that start speaking English with your friends, with your family members. ठीक है, start speaking English with your friends, family members, any people you will get. Start speaking at least daily 1 or 2 hours, because if today you will start speaking in English with your friends and family, make sure after 1 month your English will be improved at least by 50 to 60%. This is only the best way to learn the English. ठीक है, to learn, understand new words, the tenses, the passive active voice, everything. And in interview, make sure we have good technical knowledge, so at the time of explaining it really helps us a lot. ठीक है, so English communication is very important. Second thing is, again let me tell you, confidence. Make sure at the first minute of interview, or whether it is the last minute, 30th minute or 45 minutes of interview, your confidence is means at different level. ठीक है, the facial expressions which are there, that must be also happy. You must be happy throughout the interview. That is also most important thing. So this was the first point. Confidence और communication बहुत बढ़िया होना चाहिए आपका throughout the interview. ये पहला पॉइंट है. नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट. व्हाट इज द सेकेंड पॉइंट? मतलब आज जो कंपनीज हैं, ठीक है, वेदर इट इज स्मॉल स्केल कंपनी, लार्ज स्केल कंपनी, mid scale company, any type of company it is there, any form of company it is there, if you are 2 or 3 years of experience, any company will need this combination. What is that combination? Power BI plus SQL plus data concepts, data warehousing concepts. ठीक है, whether it is any company, let me tell you once again, whether it is any company, स्मॉल स्केल कंपनी में तो ये कॉम्बिनेशन लगेगा ही, क्योंकि वो 2-3 लोगों को नहीं लेते, एक ही लोगों को लेते, क्योंकि उनका बजट कम होता है. ठीक है ना, इस वजह से तो वो स्मॉल स्केल, उनके पास थोड़े पैसा कम होते हैं. बट वेदर इट इज बिग जायंट कंपनी लाइक TCS, Cognizant, and you are showing or you are having 2 or 3 years of experience, still you will need Power BI plus SQL in 2023. Long back ago, means you can say in 2019 or 2020, even if you had Power BI skill only na,
then it was okay. But now in today's world, in 2023-24, if you are having 2 plus 3 plus years of experience, Power BI plus SQL plus data concept is the most important combination formula to get selected as a Power BI developer in any form of company, any type of company. ठीक है, तो अगर आपको इसमें से सिर्फ पावर बी आ रहा है, एसक्यूएल नहीं आ रहा, आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, पावर बीआई का इंटरमीडिएट नॉलेज होना चाहिए, एसक्यूएल का बेसिक होगा तो भी चलेगा, बट हाँ बेसिक में क्या, ज्वाइंट्स आना चाहिए आपको, सब क्वेरी आना चाहिए आपको, व्यू बनाना आना चाहिए। सी व्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको सबसेट्स आने चाहिए एसक्यूएल में, डीडीएल कमांड, डीक्यूएल कमांड, डीसीएल कमांड, ये जो सब चीजें है ये आपको आना चाहिए। एसक्यूएल में तो व्यू तो आना चाहिए, क्योंकि व्यू भी हम फेच करते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। जॉइंट्स भी आपको आना चाहिए, क्योंकि बैकएंड में जो लॉजिक वगैरह लगा है वो आपको समझना चाहिए। ठीक है, आपके यहाँ पे एसक्यूएल डेवलपर होगा, बट आपको नंबर वेरीफाई करना पड़ता है, वैलिडेशन टीम होती है, बट यूनिट टेस्टिंग आप खुद भी करते हो ना पावर बीआई का रिपोर्ट बनाने के बाद। ऐसे थोड़ी ना आप बना के डायरेक्टली सेंड करोगे, यूनिट टेस्टिंग खुद भी आप करते हो। तो make sure this thing. So this combination, if you are having 2-3 years of experience, you should have intermediate advanced level of Power BI knowledge, basic level of SQL knowledge और data warehousing concepts आने चाहिए। और पावर बीआई में पावर बीआई सर्विस आपको आना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बेसिक लेवल पे अगर आया, मतलब सिर्फ शेड्यूल रिफ्रेश पता है, गेटवे पता है, सब्सक्रिप्शन जो होता है मेल वगैरह बेचते हैं, ये ऐसी छोटी ऐप कैसे क्रिएट करना, डैशबोर्ड कैसे बनाना, ये बेसिक बेसिक चीज आ गई तो भी कोई बात नहीं है, बट पावर बीआई सर्विस नॉलेज इज मस्ट। ठीक है, नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, ये देखो मैंने अलग पॉइंट डाला है, एड मोर स्किल्स ऑन रेज्यूमे इवन इफ यू नो बेसिक्स ऑफ इट और लर्न इट। मतलब इसका मीनिंग क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक टेलीग्राम पे पोस्ट भी डाली थी कुछ दिन पहले, आपने बहुत लोगों ने उसको सपोर्ट किया, बहुत लाइक्स आए थे वहां पे। ठीक है, तो मैंने ऐसे डाला कि आपको एमएसबीआई आता होगा, एसएसआईएस एसएसएस बेसिक, आपको पावर एप्स आता होगा बेसिक्स, या फिर अदर स्नोफ्लेक होगा। स्नोफ्लेक तो टोटली एसक्यूएल जैसा ही है। ओके, so if you are applying to any interview and you have seen the job description and if there is snowflake na, don't hesitate to apply it, bindas apply it, because snowflake and sql are 80 to 90% same only। ठीक है, all queries and everything is same, I have used it, so I am telling it confidently to you। if you are if in job description snowflake is there, make sure to apply it। ठीक है, तो add more skills में क्या, you can add SSIS AS if you know basics of it, then power apps is there, then power automate is there, then snowflake is there, azure is there, sharepoint is there, jira is a project management tool, if you know that, if you know how to use it, make sure you are also mentioning that in your resume। ठीक है, और अगर आपको आता भी नहीं होगा बेसिक, इट विल ओनली टेक 24 to 48 hours to learn basic level of these all skills or all tools which I have mentioned right now। ठीक है, but what it will help you now, that your resume will be stronger, the number of tools, the number of technologies what you know are not only two। यहाँ पे क्या दिख रहा है, ओनली दो ही है, पावर बीआई प्लस एसक्यूएल, बट और 3-4 आएगा ना तो योर रेज्यूमे स्ट्रांग होगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है, कंपनी 2-3 एम्प्लॉइज को लेके 8-8 लाख के पैकेज पे 24 लाख जाता है, बट आपको अकेले कोई लेगी 12 लाख पे, तो उनका 12 लाख का फायदा हो रहा है, और आपको 4 लाख बढ़ के मिल रहा है, क्योंकि पहले आपको 8 ही मिलने वाले थे। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो ज्यादा से ज्यादा स्किल्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ज्यादा से ज्यादा स्किल्स सीखते वक्त आपके जो मेन जो है पावर बीआई एसक्यूएल, वो आपको एडवांस लेवल पे आना चाहिए। नहीं तो ये बाकी क्या आप सीख रहे हो और इसका ही नॉलेज में आपको बहुत कम है, या फिर ये आपके दिमाग से जा रहा हो, तो बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, आप युवराज सिंह हो, आपकी ताकत क्या है, आपकी ताकत बैटिंग है, आप बॉलिंग थोड़ा थोड़ा सीख रहे हो, बट बैटिंग आपकी ताकत है। अगर आपको बैटिंग नहीं आएगी तो आपको टीम से बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि आपको एज ए बैट्समैन देखते हैं, वो एज युवराज सिंह को बैट्समैन देखते हैं। ठीक है, तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, ये एक चीज है, प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन एंड प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। अभी ये मैं इंटरव्यू जो हम देते हैं उसके बारे में आप स्टार्ट करेंगे, अभी बाकी के हमने सब चीजें ये रेज्यूमे और ये सब देखी, बट अभी इंटरव्यू की बात करेंगे। तो देखो, जो पहला टेक्निकल राउंड होता है उसमें तो ज्यादा प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के बारे में नहीं बोला जाता, बट जो सेकेंड राउंड टेक्निकल राउंड है, सिनेरियो बेस्ड राउंड और मैनेजर जो राउंड है, यहाँ पे ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, यहाँ पे प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन तो आपको करना ही पड़ेगा, वेदर इट इज फर्स्ट राउंड में नहीं होता,
बट वेदर इट इज सेकेंड राउंड, सेकेंड टेक्निकल राउंड और मैनेजर बेस्ड राउंड, बट प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन तो आपको आएगा ही। तो प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन में ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोस बनाए, वो आप देख सकते हो, बट यहाँ पर भी मैं बताता हूँ अभी। प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन में कैसे है कि आपके प्रोजेक्ट का डोमेन क्या था, फाइनेंस था, इंश्योरेंस था, फार्मेसी था, हेल्थ या लॉजिस्टिक्स, वो आपको बताना है। टीम साइज कितनी थी, प्रोजेक्ट आपका एक्चुअल क्या था, प्रोजेक्ट का डेटा सोर्स क्या था, अजूर था, एसक्यूएल था या स्नोफ्लेक था, ठीक है, आपकी डेटा वॉल्यूम कितना था, मतलब हाईएस्ट नंबर ऑफ रोज कितने थे, जैसे मैंने 30-40 लाख रोज पे भी काम किया है। नंबर ऑफ टेबल्स कितने थे, द स्कीम ऑफ द टेबल्स मीन्स number of how many number of columns were there, highest number of columns. One of the project I have work on which had around 130 to 150 columns were there, and the most important thing is that all 150 columns were important in our report। ठीक है, वो बहुत ही अलग रिपोर्ट था, मैं बाद में आपको कभी बता दूंगा। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन में ये सब चीजें। फिर आपका सुबह आपकी स्टैंड अप कॉल थी, देन फिर आप व्हाट यू हैव डन यस्टरडे, व्हाट टुडे यू विल डू, देन एनी रोड ब्लॉक्स while वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट और टुमारो व्हाट यू विल प्लान। ये सब चीजें प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन में होते हैं। या फिर वीक में 1-2 दिन बिजनेस ऑपरेशंस मीटिंग होती है, उसमें आपने फिर कौन से रिपोर्ट दिखाए वगैरह। ऐसे प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन में प्रॉपरली जो रियल टाइम वर्क है वो आपको बताना है। ठीक है, फिर आपने डैक्स कौन सा यूज किया, पावर भी ऐसे यूज में स्केड्यूल रिफ्रेश जो था वो कितने बजे था, कितने बार होता था, कौन सा अकाउंट था, प्रो प्रीमियम। ठीक है, गेटवे कौन सा यूज किया, तो स्टैंडर्ड ही यूज करेगा ना, पर्सनल तो कंपनी में नहीं होता, स्टैंडर्ड ही था। ठीक है, ये सब बातें। सब्सक्रिप्शन जो था, ईमेल्स वगैरह जो क्लाइंट को आप सेंड करते थे या फिर अपने टीम को आते थे, वो कितने बजे थे, प्रोडक्शन में डेटा लोड कितने बजे होता था, फिर आपने डैशबोर्ड बनाया था क्या और उसमें ऐसे डेट्स डाले थे क्या। मतलब कैसा होता है ना, कभी कभी हम एक एक्स्ट्रा डैशबोर्ड बनाते हैं और जितने भी रिपोर्ट्स हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट डेट्स होती है, ठीक है, ट्रेड डेट होगा या फिर स्टार्ट डेट होगा, ये सब डेट्स हम कार्ड में डालते हैं और लेटेस्ट डेट करके फिर वो रिफ्रेश हमारे प्रोडक्शन जो पावर भी होता है उसमें रिफ्रेश कराते हैं और फिर वो मेल जो उस डैशबोर्ड का है स्क्रीनशॉट वो हमारे यहाँ पे जाते हैं क्लाइंट को, और फिर हमें समझ में आता है कि हाँ बाबा आज का डेटा प्रॉपरली लोड हुआ। एवरी टाइम आप डेटा सोर्स में एसक्यूएल या स्नोफ्लेक में जाके नहीं देखते कि लेटेस्ट डेट कौन सी है वगैरह। ठीक है, तो ये है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में क्या है। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल इज देर आर मोस्टली 2-3 एनवायरमेंट्स इन any real time projects what you work. The first is dev environment, then UAT is there, then production is there. Production is the most important thing. Those who are freshers don't work on production environment. ठीक है, the one who is having 2, 3, 5 years of experience will only work on production environment। ठीक है, in dev environment everyone will work। बहुत सिंपल होता है वो dev environment, मतलब बेसिक। dev environment में डेटा भी बहुत कम होता है। अगर आपके रियल टाइम प्रोजेक्ट में 1 साल का डेटा है तो डेव एनवायरनमेंट में खाली 10-15 दिन का होगा, उस पर आप वो रिपोर्ट बनाओगे, क्यूए टीम को सेंड करोगे, देन दे विल वैलिडेट इट ऑन लुक एंड फील एवरीथिंग, दे विल सी डेटा भी वो देखेंगे करेक्ट है क्या नहीं, फिर वो क्लाइंट को दिखा जाएगा, क्लाइंट फिर यूएटी साइन ऑफ देगा एंड देन फिर वो प्रोडक्शन पे शिफ्ट किया जाएगा। कभी कभी प्रोडक्शन में भी 2 पार्ट होते हैं, प्री प्रोडक्शन और फुल्ली प्रोडक्शनाइज। ठीक है, तो कभी क्योंकि फुल्ली प्रोडक्शनाइज जो होता है वो बिजनेस यूजर्स को दिया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, और बिजनेस यूजर्स को जब दिया जाता है देन मेक श्योर दैट इट इज 100% एक्यूरेट, क्योंकि वहां से कंप्लेन अगर आई तो फिर आपका जॉब या फिर ये जो चीज़ है आपको प्रोजेक्ट से निकाला भी जाता है, क्योंकि वहां से कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। फुल्ली प्रोडक्शनाइज होने के बाद बिजनेस यूजर्स को देने के बाद डेव में कितने भी प्रॉब्लम होने दो, प्री प्रॉड वर्जन होता है उसमें भी प्रॉब्लम होगा, कोई बात नहीं है। आप जिस क्लाइंट के साथ बात कर रहे हो उन्होंने आपके रिपोर्ट से गलती निकाला फिर भी कोई बात नहीं, बट जब बिजनेस यूजर्स को वो हैंड ओवर किया जा रहा है और उसके बाद अगर एरर्स, बेसिक एरर्स है, डेटा एरर आ रहा है, तो फिर बहुत बड़ी गलती है। तो ये जो चीजें है प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, ये आपको मैनेजर राउंड या फिर सेकेंड जो राउंड था उसमें अगर आप प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दोगे ना, मैं लिख के देता हूँ 100% आपका इंटरव्यू क्रैक होगा, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, प्रोजेक्ट जो आपने किया है वो आप प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पा रहे हो, प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल आपके कंपनी में कैसे काम होता है या क्लाइंट के साथ आप कैसे काम करते हो, वो अगर आप प्रॉपरली बता दोगे तो फिर बात ही खत्म होगी ना, वही तो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू दिस फिफ्थ पॉइंट, ये थोड़ा मैंने टेक्निकल पॉइंट डाला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
जो मेरे फोर्थ पॉइंट था वो भी इंपॉर्टेंट है और ये टेक्निकली बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब इंटरव्यू दे रहे हो, डेटा मॉडलिंग पे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें से आपको, अगर फॉर एग्जांपल डेटा मॉडलिंग पे 5 क्वेश्चन आते तो 4 के तो आंसर देना ही है। अगर वो बोले कि कौन सी कार्डिनलिटी थी, तो आप बता दो, जो भी होगा आपका, वन टू मेनी होगा, मेनी टू मेनी होगा, जो भी आपका होगा वो आपको प्रॉपरली बताना है। कितने फैक्ट टेबल्स थे, कितने डायमेंशन टेबल्स थे, किस प्रकार से फिल्टर किया जा रहा था, डेट कॉलम डेट टेबल का क्या रोल था, ये मॉडलिंग आपको प्रॉपरली बताना है। फिर एक्टिव रिलेशनशिप, इनएक्टिव रिलेशनशिप, फिर कैसे आपने बनाया, ये सब चीज आपको प्रॉपर है मॉडलिंग में। और एक इंपॉर्टेंट क्या बात होती है कि डेटा टाइप जो होता है कॉलम का, वो एक प्रॉपरली कैटेगराइज करना होता, मतलब करना पड़ता है। क्योंकि समटाइम्स व्हाट हैपेंस ना, व्हेन द डेटा कम्स फ्रॉम बैक एंड टीम और डेव टीम, the data types of columns are wrong. So make sure that in Power Query there is one option known as data profiling, in which I guess column profiling option, or you can check it the data type of every column properly. तो हम क्या करते हैं हमारे प्रोजेक्ट में, what we do in our project ना, when the data comes or when we load the data or when we load the store procedure or view, we make sure that we are spending around 1 or 2 hours only properly to check the data type of every column properly. Every column, make sure every column I am saying properly, even in Power Query and even in data pane of Power BI desktop. ठीक है, क्योंकि अगर आपका डेटा टाइप गलत है तो आपका मॉडलिंग भी प्रॉपरली नहीं वर्क करेगा और आपका डेक्स भी प्रॉपरली, डेक्स जो मेजर आपने बनाया वो भी प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। तो डेटा मॉडल में ये सब चीज आपको प्रॉपरली बतानी है। देन डेक्स, कमिंग टू डेक्स, कौन से डेक्स यूज किए, ये तो 100% पूछते हैं। तो मेक श्योर यू आर स्टार्टिंग विथ कैलकुलेट। ठीक है, कैलकुलेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट पावरफुल डेक्स इन पावर बीआई। ठीक है, कैलकुलेट से स्टार्ट करो। देन स्टार्टिंग विथ कैलकुलेट यू कैन अगेन मूव ऑन टू टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन, टोटल एमटीडी, टोटल वाईटीडी, क्यूटीडी जो है, फिर समराइज आप बता सकते हो, एग्रीगेशन है, फिर बेसिक डैक्स जो है, सम एवरेज वगैरह, वो भी बहुत यूज किया जाता है। मैं आपको बताता हूँ, सम एवरेज मैक्स, वो भी डैक्स यूज किया जाता है। रैंक एक है, अभी न्यू अपडेट में आया है रैंक एक्स, पहले रैंक एक्स था, अभी रैंक एक। तो ये सब चीजें, तो आपको डैक्स बताना है कौन से सिनेरियो में आपने यूज किया, आपको डैक्स भी प्रॉपरली बताना आना चाहिए। फिर आपने इफ लॉजिकल पे डैक्स चेक वगैरह हम करते हैं बहुत बार, कभी कभी, तो उस वक्त भी डैक्स हम यूज करते हैं। ठीक है, तो बहुत, तो आपको एवरी टाइप ऑफ जो डैक्स है, वेदर इट इज लॉजिकल फंक्शन, वेदर इट इज देन मैथमेटिकल एग्रीगेशन, या फिर पेरेंट चाइल्ड जो डैक्स है, ऑल टाइप्स ऑफ जो डैक्स है, उसमें से जो 4-5 मेन है, डेट एंड टाइम फंक्शन है जिसमें ई डेट वगैरह आता है। ई डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट डैक्स है। ठीक है, एग्जैक्टली वो आपको 1, 2, 3 महीने पीछे लेके जाता है। Now coming to Power BI service, what is the most important part in Power BI service? The most important part in Power BI service is schedule refresher. Okay, the most important part in Power BI service, I am again repeating, is schedule refresh. ठीक है, the gateway configuration, the schedule refresh is the most important part. People think that creating of app or creating of dashboard is most important thing. Yes, I know that it is important, but more important than that is schedule refresh, gateway and subscription part, data alerts part, that is the most important thing guys। ठीक है, तो वो आपको चीज आनी चाहिए। हर एक कंपनी में डैशबोर्ड जो पावर बीआई सर्विस में या ऐप से वो बनाया नहीं जाता, हर एक क्लाइंट वो नहीं बोलते बनाने के लिए, मैंने देखा इसलिए बोल रहा हूँ। बट स्केड्यूल रिफ्रेश होगा ही होगा, क्योंकि प्रोडक्शन में जब डेटा लोड होगा वहां से ही फिर रिफ्रेश वगैरह होता है और फिर वो हम लेटेस्ट डेट्स वगैरह सब देखते हैं। तो गेटवे कॉन्फ़िगरेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। या फिर आपको डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन पता होगा, बेसिक्स ऑफ दैट, वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये पावर बीआई सर्विस का पार्ट आपको आना चाहिए। या फिर वर्क स्पेस में एक्सेस कैसे देते हैं, आरएलएस वगैरह, ये जो चीजें ना वो आप कैसे देते हो, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। आरएलएस वगैरह, वर्क स्पेस में एक्सेस, एडमिन का एक्सेस क्या है, उसकी पावर्स क्या है, व्हाट इज द पावर्स ऑफ मेंबर एक्सेस, देन कंट्रीब्यूटर एक्सेस, दिस आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स इन पावर बीआई सर्विस, यू मस्ट नो दिस थिंग्स। ओके गाइस, नाउ कमिंग टू आवर 6th point, if you are able to crack the first technical round, okay, if you are able to crack the first technical round, mark my words, you can crack whole interview also। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं कि मैंने 4-5 कंपनीज के इंटरव्यू दिए बट फर्स्ट टेक्निकल राउंड से
या सेकंड टेक्निकल राउंड से बाहर में जा रहा हूँ। देखो आप अगर फर्स्ट टेक्निकल राउंड क्रैक करते हो ना, मैं उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने बोला कि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए, और कंपनी के इंटरव्यूज नहीं, क्लाइंट के इंटरव्यूज की बात कर रहा हूँ। बिजनेस एंड यूजर्स वगैरह जो थे उनके उनको भी प्रेजेंट वगैरह किया है मैंने प्रोजेक्ट, इसलिए मैं बताता हूँ आपको। ये जो फर्स्ट टेक्निकल राउंड जो होता है ना, लोगों को लगता है ये बहुत सिंपल वगैरह, जो कि होता भी है सिंपल, बट उसमें भी आपके बेसिक्स और इंटरमीडिएट लेवल चेक किए जाते हैं। और अगर आप वो क्रैक कर रहे हो ना, तो इसका मतलब है कि आपको डैक्स आता है, उसका मतलब है कि आपको मॉडलिंग समझ में आती है, आपका पावर क्वेरी जो है, ठीक है, पावर क्वेरी जो पार्ट है ना, वो फर्स्ट टेक्निकल राउंड में ज्यादा पूछे जाते हैं, तो वो आपको आता है। एसक्यूएल भी बेसिक्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट टेक्निकल राउंड अगर आप क्रैक कर रहे हो ना, तो आपको नॉलेज अच्छी है, बहुत अच्छी है। 5 कंपनी में से अगर 3-4 कंपनी के फर्स्ट टेक्निकल राउंड आपने क्रैक किए और सेकंड में आप बाहर जा रहे हो, तो आपको थोड़ा एडवांस लर्न करने की जरूरत है, ठीक है। बट अगर 5 आपने दिए और एक आध में ही क्रैक हुआ और 4 में आप बाहर गए, तो आपका 80% ये है ना फेलियर रेशियो है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ रही है। बट अगर आप 5 कंपनीज के 10 कंपनीज के इंटरव्यू दे रहे हो और सब में आप फर्स्ट राउंड क्रैक कर रहे हो, तो और सेकंड में या फिर थर्ड में बाहर जा रहे हो, तो आपको थोड़ा एडवांस लेवल ऑफ नॉलेज आपको लाने की जरूरत है। या फिर डैक्स थोड़ा एडवांस सीखो, पावर बीआई सर्विस एडवांस सीखो, या फिर जो प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो आपको ठीक से करने नहीं आ रहा, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल आपको बताने नहीं आ रहा, ये उसका प्रॉब्लम है। बट अगर if you are able to crack the first technical round, then you can crack whole interview also, mark my words. Okay, whether it is small scale company or whether it is big giant company like TCS or Cognizant or any other company, ठीक है। फॉर 2+3+ दिस स्किल आर इम्पोर्टेंट, हाँ ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, यहीं पे बता दिया। तो इफ यू आर 2+3+ और 4+ years of experience, make sure to even mention these things: MSBI, Power Apps, Azure, Python, R in your resume. And if you don't know, make sure it will take around 48 hours to learn basics of these things and mention in your resume. And even in your interview, you can say that I know basics of this, no issues, ठीक है। अभी ये जो पॉइंट है लास्ट सेकेंड, 10 मिनट 20 मिनट इंटरव्यू रूल, ये क्या है, ये पहली बार आपने देखा होगा आज, ठीक है। यूट्यूब पे आपने कभी देखा नहीं होगा या फिर कई बार भी ये पढ़ा नहीं होगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरे एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ। मोस्टली जो इंटरव्यू होता है वो 30 मिनट्स के होते हैं, ठीक है। लेट्स अज्यूम दैट एवरी इंटरव्यूज ऑफ 30 मिनट्स। जो पहले 10 मिनट होते हैं ना, वो जो इंटरव्यूअर पैनलिस्ट जो होता है ना, वो क्वेश्चंस पूछता है वहां पे। हम पहले मतलब पहले 2 मिनट तो इंट्रोडक्शन में जाते हैं, और आपका इंट्रोडक्शन बहुत बढ़िया होगा तो पहले 5 मिनट तो आपके लाइफ के बारे में वगैरह पूछेगी। जैसे मेरे साथ बहुत हुआ है, मैं इंट्रोडक्शन इतना अच्छा देता हूँ कि पावर बीआई थोड़ा शिफ्ट हो जाता है और वो बाकी के ही पूछते हैं, बाबा ये आपने क्या किया, वो क्या, ऐसा होता है मतलब, ठीक है। तो जो पहले 10 मिनट होते हैं, इंटरव्यूअर जो होता है वो अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं पावर बीआई के, ठीक है। पावर बीआई उनको जो आपसे आंसर्स चाहिए, आपका नॉलेज चेक करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना होता है मैं आपको बताता हूँ, या फिर मैं क्या करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने स्टार्टिंग में पूछा वगैरह ये सब चीजें वगैरह वगैरह, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसके आंसर्स भी देता हूँ बट उसके रिलेट थोड़ा उनको घुमाता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे पूछा गया था कि आप पावर बीआई सर्विस में आपने क्या क्या किया, तो मैंने बोला कि मैंने डैशबोर्ड्स वगैरह बनाए वगैरह है, मैंने स्केड्यूल रिफ्रेश वगैरह किया है वगैरह। तो मैंने फिर उनको कैसे घुमाया कि उन्होंने हो गया उनका, फिर मैंने उनको बोला कि मैंने सब्सक्रिप्शन पार्ट भी किया है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन पार्ट जो होता है ना, वो क्या होता है, मेल्स भेजते हैं हम क्लाइंट को, या फिर हमारे टीम जो होते हैं उनमें मेल्स वगैरह भेजते हैं। तो मैंने वो बोला कि मैंने वो एन प्रिंटिंग जो पार्ट है क्लिक सेंस में वो किया, और सब्सक्रिप्शन पार्ट है पावर बीआई सर्विस में वो भी किया है मैंने, ठीक है। तो इस प्रकार से उनको घुमाया। तो फिर उन्होंने पूछा अरे आप क्लाइंट को सॉरी, तो उन्होंने पूछा फिर आप क्लाइंट को मेल्स वगैरह भेजते थे, तो आप मेल्स का फॉर्मेट कैसा होता था, फिर मैं बोलता था ऐसे ऐसे वगैरह ये सब चीजें। फिर क्लाइंट डिस्कशन पे पूरा घुमाया, फिर क्लाइंट को मैं बोलता था कि वीक में 2 बार प्रेजेंट करता था। फिर मैंने जो डेव में जो डेव एनवायरमेंट था उसमें जो फाइल बनाई है वो उनको दिखाता था। फिर उनसे उनको वो पावर बीआई सर्विस की जो लिंक है वो देता था, एंड विद इन 2-3 आवर्स वो देखने के बाद फिर मुझे मेल पे रिप्लाई करते थे।
तो ऐसा मैंने टोटली, मैं क्लाइंट की जो बात है वहां पे बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि मैंने क्लाइंट के साथ वीक में 2 बार बात की, उनपे मेल पे बात किया, उनके एंड यूजर्स के साथ बात की। तो वो मेरा क्या है, वो मेरा यूएसपी है, यूनिक से सेलिंग प्रोडक्ट है वो मैं खुद को उनको सेल कर सकता हूँ कि इसमें बहुत बढ़िया हूँ। तो फिर ऐसे मैंने टोटली पावर बीआई सर्विस पार्ट से क्लाइंट की तरफ ही इंटरव्यू को घुमाया। और फिर टोटली फिर बात आई, फिर क्लाइंट के साथ आप कैसे बात करते थे, क्या उनको बताते, फिर प्रोडक्शनाइज फिर कैसा, ये सब चीजें फिर मैंने बोला कि मैंने एडिशनल वैल्यू जो थी वो प्रोजेक्ट में ऐड की थी, फिर वो उनको दिखाया, फिर उनको बहुत पसंद आया। कुछ बातें उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, वो बोले ये कॉलम हमको नहीं चाहिए। फिर ये ऐसा क्लाइंट को घुमाना होता है, ठीक है। या फिर अगर वो बोलेगी कि आपको कैलकुलेट डेक्स आपने यूज किया, फिर कोई सिनेरियो देगा आपको डेक्स का, तो वो आपको बताना है। और जो आपने डेक्स खुद ने यूज किया वो भी बताना है, हाँ मैंने एवरेज इस सिनेरियो में यूज किया था, मैंने सम इस सिनेरियो में यूज किया था। आपको कैलकुलेट डेक्स में आप थोड़ा अनकॉन्फिडेंट हो, तो आप सम और एवरेज में तो कॉन्फिडेंट हो ना, तो आप उनको घुमाओ कि हाँ कैलकुलेट यहाँ पे यूज किया था, और उसके बाद तुरंत बोलने का कि हाँ सम मैंने, एवरेज मैंने काउंट या इस सिनेरियो में यूज किया था, हमारे क्लाइंट ने ये वगैरह बोला था। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, इंटरव्यूअर है ना, इंटरव्यूअर आपको पूरा फ्रीडम देते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। मेक श्योर दिस विल नेवर हैपन दैट यू आर स्पीकिंग एंड इंटरव्यूअर विल इंटरप्ट यू एंड से नो 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 स्टॉप इट, ऐसा कभी नहीं होगा। आप जब तक बोलते जा रहे हो, डेटा मॉडलिंग पे बोलते जा रहे हो, टैक्स पे, वो बोलने देंगे, आपको सिर्फ बोलते रहना है। जो आपको आपका जो प्लस पॉइंट है, जैसा मेरा क्लाइंट जो है वो मेरा प्लस पॉइंट था, ठीक है। या फिर मेरा जो वैलिडेशन पार्ट है, जो मैं रिपोर्ट खुद बनाता हूँ उसका वैलिडेशन मैं खुद करता हूँ, क्यूए जो टीम होती है, वैलिडेशन टीम, उनका रोल थोड़ा मैंने खत्म किया है मेरे प्रोजेक्ट्स में। तो वो मेरा प्लस पॉइंट है कि अरे मैं डेटा भी, व्यू भी बना सकता हूँ, रिपोर्ट्स भी बना सकता हूँ और वैलिडेशन भी कर सकता हूँ। तो जहाँ पे 3 लोग है वहां पे ये अकेला ही कर रहा है। तो ये मेरा यूएसपी थे, वो मैं उसको सेल करता था। तो आपका जो यूएसपी, आपको डेटा मॉडलिंग प्रॉपरली आता, तो जैसे डेटा मॉडल पे क्वेश्चन आएगा उसका आंसर देने का बेसिक या एडवांस जो भी है, और आपका जो नॉलेज है वो तुरंत स्टार्ट कर देने का, बकने का। और फिर बाद में जो पहले 8-10 मिनट तो वो जो क्वेश्चन पूछेगा, तुरंत आप स्टार्टिंग में ये चीज नहीं कर सकते, नहीं तो इंप्रेशन डाउन होगा। क्योंकि स्टार्टिंग में जब जो पैनलिस्ट होता है वो अपने मूड में आया होता है, वो उसके दिमाग में जो क्वेश्चंस होते हैं वो उसको पूछना होता है, और वो पहले 4-5 क्वेश्चन उसको पूछने देने के, और उसके बाद फिर पूरा इंटरव्यू को घुमाने का। और मेक श्योर, मार्क माई वर्ड्स, ये मैंने लिख के दे रहा हूँ, मैंने 100 इंटरव्यूज दिए, मोर देन 100, इसलिए मैं कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ ये वर्क करता है, मेरे साथ हुआ है, मैंने जिन जिन स्टूडेंट्स को बताया उनके साथ भी वर्क हुआ है। इसलिए तो मैं इतने वो स्क्रीनशॉट्स वगैरह डालता हूँ टेलीग्राम ग्रुप में, इंस्टाग्राम में, इस बेसिस पे डालता हूँ। तो ये वर्क करता है। आपको जो आता है वो कॉन्फिडेंटली बोलना है, ठीक है। उनका रिस्पेक्ट करते हो, उनके क्वेश्चंस का सम्मान करने का, उसका टोटली आंसर वगैरह देने का, एंड देन फिर आपको जो आता है वो बोलते रहने का। और जो आप बोलेंगे उसके ऊपर फिर क्वेश्चन आएगा, और जो आप बोलोगे वो आपने किया है, ऑफ कोर्स, और उसके ऊपर अगर क्वेश्चन आया तो आप आंसर तो दे ही सकते हो, बात खत्म। तो जो रूल है कि 20 क्वेश्चन में से 15-16 के आपको आंसर्स आने चाहिए, तो आप दे सकते हो बिंदास, क्योंकि आप अपने तरीके से घुमा रहे हो, उसके आपको जो आता है उस पर ही वो क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस चीज का। नाउ कमिंग टू दिस रियल टाइम एक्सपीरियंस वर्सेस अदर एक्सपीरियंस। तो देखो जो फॉर एग्जांपल रियल टाइम एक्सपीरियंस वाले होते हैं जो 3+4+ जो भी होगा, और अदर एक्सपीरियंस मतलब कुछ बच्चे होते हैं जो एक्सपीरियंस कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक डिजिटल मार्केटिंग में है वो, उनको डिजिटल मार्केटिंग या फिर बैकएंड में उन्होंने काम किया है, बीपीओ में काम किया है, फिर उनको करियर स्विच करना है, और फिर वो पावर बीआई सीखते हैं, और फिर क्या करते हैं वो अपना जो डिजिटल मार्केटिंग बीपीओ का एक्सपीरियंस है उसको कन्वर्ट करके उनके रेज्यूमे में पावर बीआई का एक्सपीरियंस डाल देते हैं, या फिर कुछ लोग एक्सपीरियंस लगाते हैं डायरेक्टली, तो वो मतलब अदर एक्सपीरियंस है। तो ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहली बात है, तो रियल टाइम एक्सपीरियंस वाला बंदा है वो अलग लेवल का है, सचिन तेंदुलकर ही रहेगी, ठीक है। तो रियल टाइम एक्सपीरियंस वाले जो है उनका अलग लेवल का एक्सपीरियंस होता है। बट ये जो कैंडिडेट होते हैं ना, एक्सपीरियंस दिखाने वाले या फिर एक्सपीरियंस को कन्वर्ट करने वाले, उनके दिमाग में सबसे बड़ा कंफ्यूजन मैंने जो देखा है वो एक है कि उनको लगता है कि हमें कुछ भी नहीं आता। बट सबसे इंपॉर्टेंट में आप, ये जो कैंडिडेट जो अभी जो व्यूवर्स देख रहे हैं ना, देखो मेरे भाई, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, आपको बहुत नॉलेज है,
बट आपको लगता है कि आप थोड़ा सा ये सब चीजें कर रहे हो इसलिए आपको नहीं आता। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको बहुत नॉलेज है। आप अगर 2-3 साल का एक्सपीरियंस लगा रहे हो और आप इंटरव्यू क्रैक कर रहे हो, उसका मतलब ये है कि आपको उस लेवल का नॉलेज है, इस वजह से क्रैक कर रहे हो। जो पैनलिस्ट जो होता है ना, उसको नहीं पता होता ये रियल टाइम वाला एक्सपीरियंस है या फिर कन्वर्ट किया हुआ एक्सपीरियंस वाला बनता है। वो तो दोनों को, उसके सामने जो भी आएगा उसको वो क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो आप अगर वो क्रैक कर पा रहे हैं तो आपको उस लेवल का नॉलेज है। आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, सिर्फ ये चौथा पॉइंट जो है वहां पे आपको प्रॉब्लम आता है। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल आपने रियल टाइम वर्क देखा नहीं होता या फिर रियल प्रोजेक्ट्स पे आपने काम नहीं किए होते, आप भी प्रोजेक्ट को भी कन्वर्ट करते हो वगैरह, ऐसी ये सब बातें आप करते हो। ठीक है, तो ये चीज दिमाग से निकालो कि हमें कुछ भी नहीं आता, हम बिल्कुल भी मतलब डल है, डम है, ऐसा नहीं है। आपको बहुत चीज आती है, बट आपको पावर बीआई प्रॉपरली आपको समझना है, जिसमें पावर बीआई सर्विस आना चाहिए, पावर क्वेरी और बीआई डेस्कटॉप तो इंपॉर्टेंट है, एसक्यूएल भी आपको आना चाहिए, जॉइंट्स व्यूज वगैरह सब क्वेरी, ये जो सब टेम्परेरी टेबल्स, डेटा वेयर हाउसिंग, या फिर ये जो अदर मैंने बताया एमएसबीआई जो बेसिक है, थोड़ा थोड़ा आगा तो भी चलेगा। बट मेक श्योर, हाँ, ये अदर एक्सपीरियंस वाले उनको ये पॉइंट बहुत वैलिड है। पहला पॉइंट कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन। आपका कॉन्फिडेंस उस वजह से लो होता है क्योंकि तो आप थोड़ा अलग वे से जा रहे हो। ठीक है, और आपका कुछ कुछ लोगों का कम्युनिकेशन अच्छा होता है और जिनका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, मेक श्योर टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली today itself, from now itself only. Okay, so the communication is the most important parameter. ठीक है, communication and confidence are the most important parameter for any interview, not only power bi but for any interview. So coming to this last point, ठीक है, the conclusion of last point is that the real time experience will be always brand, no doubt that candidate is on different level, but the other one जो अलग प्रकार के जो है, जो कन्वर्ट करके लगा के जाते हैं, आपको भी बहुत अच्छा नॉलेज है, आपको प्रॉपरली सीखना है। आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब से सीखना है, गूगल से सीखना है, यूडीमी से सीखना है, ज्यादा से ज्यादा डेटा सेट पे काम करना है, जितने ज्यादा उतने रिक्वायरमेंट में काम करना। कुछ भी करते बैठो पावर बीआई में, जो आपको दिन रात उसी में पावर बीआई एसक्यूएल पे टेबल्स बनाओ, विजुअल्स पे काम करो, कस्टम विजुअल्स को समझो। ठीक है, तो ये आपको करना है, बाकी कुछ नहीं है। सो थैंक्स अलॉट एवरीवन फॉर वाचिंग टिल एंड। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, तकरीबन आई थिंक 10 है, ये 5 और ये 4, 9 पॉइंट्स है। ठीक है, तो ये 9 पॉइंट्स आपको प्रॉपरली देखने हैं। मैंने बहुत ही प्रॉपरली एक्सप्लेन किया एवरीथिंग। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैंने पूरा डाला, या फिर मेरे स्टूडेंट्स जो थे, मेरे कंपनी के कलीग्स जो थे, जिनके साथ मैंने काम वगैरह किया है, जिनको देखा है, या फिर एचआर जो है, ठीक है, जो कुछ एचआर फर्स्ट टेक्निकल राउंड और लास्ट, सॉरी, फर्स्ट एचआर राउंड और लास्ट एचआर राउंड लेते हैं, उनको भी पता होता है थोड़े पावर बीआई वगैरह ये छोटी छोटी चीजें, तो उनसे भी मैंने जो जो कुछ चीजें सीखी है या फिर उनसे जो मैंने देखी है, वो सब चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई है। और पावर बीआई प्लेलिस्ट जो है हमारा, वो भी आप देख सकते हो। मैंने जैसे कल बोला था टेलीग्राम के हमारे मैसेज पे कि सिर्फ 67 वीडियोज है और 20 आवर्स के, सिर्फ 3 या 4 दिन लगेंगे। डेली 4-4 घंटे देखोगे ना, 3-4 दिन में पूरा हो जाएगा, बट आपको बहुत चीजें समझ में आएगी। फ्री में सब दे रहा हूँ, फ्री में, इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो अगर कुछ डाउट होगा तो मेक श्योर यू आर कमेंटिंग, विद इन 1 आवर वी विल रिप्लाई यू। फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम, and subscribe our channel and press bell icon for all upcoming videos. And if you like the video, please like it and share with your friends, those who need it. Thanks a lot everyone. If any doubt is there, any doubt, make sure you are commenting. Thank you.